Hello, Namaskar, and good afternoon, friends. Welcome back to my channel. And my name is Tajinder Singh Nagpal. I'm working as a finance and insurance professional, and my today's topic is taxation. So here I'm gonna teach you how you can save your tax under various sections. So let's start. So friends, as I discussed, today's topic is taxation. How and where we can save taxes. So let's start with the history. Income tax is today an important source of revenue for government in all the countries. More than 3000 years ago, the inhabitants of ancient Egypt and Greece used to pay income tax, consumption taxes and custom duties. Income tax was first introduced in India in 1860 by James Wilson, who became India's first finance member. As you already know, there are two types of tax, direct taxes and indirect taxes. So taxation is what is now question arise, what is tax? Tax charge made by the government to the public to meet its expenses for the nation. It can be on individual, it can be on corporation. But today we are going to discuss only on individual. So what is income tax? Income tax is one of the direct tax. It is charged on the income of individual, HUF, unregistered firms, and other association of people. Income tax was passed in September 1961 and came into force in 1st April 1962. So far, we have just discussed about the taxation, direct taxes, income tax. So let's move further. Now there is confusion how to save taxes and what are the tools. So let's talk about salaried individual. So sorry, today I didn't speak much in Hindi, so let's start in Hindi. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मोस्टली हम डिस्कस करेंगे सैलरीड इंडिविजुअल के ऊपर, बिकॉज बिजनेसमैन कैन सेव देयर टैक्सेस. उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपने टैक्स को सेव करने के लिए, बट सैलरीड इंडिविजुअल के लिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू सेव द टैक्स. सो each individual should know where they can save their taxes. So as a salaried person, most difficult part how we can save tax. Now government has announced two tax regime. I'm sure आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ने दो टैक्स regime अनाउंस कर रखे हैं, ओल्ड टैक्स regime एंड न्यू टैक्स regime. So what we should opt and what would be the difference? मतलब हम लोगों को अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को कौन से टैक्स regime में आना चाहिए, हमारे लिए ओल्ड वाला बेटर है या न्यू वाला बेटर है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले मैं नए से स्टार्ट कर देता हूं. मैं इसमें आपको मोटी मोटी चीज एक ये बता दूं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिमे में जाते हैं तो आपको सारे पुराने बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक डिडक्शंस एंड रिबेट. बट न्यू टैक्स रेजिमे में कोई डिडक्शन एंड कोई रिबेट नहीं है. तो न्यू टैक्स रेजिमे में हमें कोई सेक्शंस और किसी डिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम स्ट्रेट अवे टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं. ऑल्दो न्यू टैक्स रेजिमे में कंपनी ने थोड़े से स्लैब्स को लीनियंट किया है, बट ओल्ड टैक्स रेजिमे में आपको सारे के सारे डिडक्शंस मिलेंगे. तो विल स्टार्ट फ्रॉम ओल्ड टैक्स रेजिमे वेयर यू कैन गेट ऑल द डिडक्शंस. So if your income is less than 5 lakh rupees, then you will get deduction and do not need to pay any taxes. राइट अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यू विल बी 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड. But if income is more than 5 lakh rupees, then you can save tax through various techniques. So let's see which techniques we have. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट सेक्शन 80C. आई एम श्योर आप लोगों को सबको 80C के बारे में पता होगा. 80C में मैक्सिमम जो हमें छूट मिलती है दैट इज 1,50,000 रुपीज मैक्सिमम. लाइक यू कैन सेव अप टू 1,50,000 ओनली. अब इसमें भी दो ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन ये है कि आप कुछ एक्सपेंसेस करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं. दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं. अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप खर्चा करके भी अपने टैक्स को बचा सकते हैं. वो क्या है मैं आपसे डिस्कस करूंगा. पहला है वेयर यू ऑलरेडी स्पेंड मनी, जहां पे आप ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं उस पर भी आपको टैक्स की छूट मिलती है. सबसे पहले आता है चाइल्ड एजुकेशन ट्यूशन फी अप टू 2 चाइल्ड.
आपके कोई भी दो बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं स्कूल में, तो जो आप स्कूल की फीस पे करते हैं उस फीस पे गवर्नमेंट आपको अंडर सेक्शन 80C की छूट देती है। अब फीस पे करना हमारे लिए मैंडेटरी है, मतलब हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस देनी ही देनी है। उस फीस पे आपको कंपनी या गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 80C छूट देती है, अप टू 2 चाइल्ड ओनली। सेकेंड जो डिडक्शन है इसमें, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने होम लोन ले रखा होगा। अगर होम लोन में आप जो भी अमाउंट पे करते हैं एज ए ईएमआई, हर महीने जो आप ईएमआई पे करते हैं उसके दो कंटेंट होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल, सेकंड पार्ट इज इंटरेस्ट। तो जो आप प्रिंसिपल पे करते हैं उस प्रिंसिपल का जितना आपने साल में पे किया है, अप टू 1,50,000 रुपीज आप उस पर टैक्स का क्लेम ले सकते हैं। तो ये तो था कि ऑप्शन वन, जहां पे आपने एक्सपेंडिचर ऑलरेडी कर दिया है उस पर गवर्नमेंट आपको टैक्स की छूट दे रही है। अगर सपोज आपके बच्चे नहीं है या आप होम लोन नहीं ले रखा है, तो भी आपके पास ऑल्टरनेट है अपने टैक्स को सेव करने का। सो लेट्स गो फर्दर। सेकंड ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट यू कैन डू, राइट। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिस आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने इस कैटेगरी में डाला है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। आप लोगों को पता होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में हम जो भी पैसा अगर ईएलएसएस स्कीम में लेते हैं, ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अगर आपने ईएलएसएस में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है, जहां पे लॉक इन पीरियड 3 साल का रहता है, उसमें आपको अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। सेकंड जो इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड किड्स, राइट। तो अगर मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अपने ऊपर ले रखा है, अपनी लाइफ पे ले रखा है, अपनी वाइफ के लाइफ पे ले रखा है और अपने बच्चों के नाम पे ले रखा है, तो उसमें मुझे 1.5 लाख रुपए तक की 1,50,000 की छूट मिलती है। थर्ड ऑप्शन वी हैव पीएफ कंट्रीब्यूशन। इसमें कंपनी ये कहती है कि मतलब इनकम टैक्स ये कहता है कि पीएफ कंट्रीब्यूशन में यू आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन ओनली इन केस योर होल्डिंग शुड बी फॉर 2 इयर्स। अगर आपने 2 साल तक अपने पीएफ को रखा हुआ है, देन ओनली यू कैन क्लेम। इसमें भी कंपनी इनकम टैक्स ने दो उसमें बांट रखा है पीएफ को। पीएफ हैव टू ऑप्शन। फर्स्ट इज पीपीएफ। पीपीएफ आप सब लोगों को पता होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आप अकाउंट किसी भी बैंक में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में अपनी फैमिली और अपने नाम पे खुलवा सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें भी आप अप टू 1,50,000 तक की छूट ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन बाय डिफॉल्ट है, आप किसी अगर कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, जिस कंपनी में भी आप जॉब कर रहे हैं, कंपनी आपका ईपीएफ काटती है। ईपीएफ इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी होती है उसका 12% कंपनी ईपीएफ काटती है, उसमें भी आपको टैक्स की छूट मिलती है। लेट्स से आपने साल में अगर 1 लाख रुपए का पीएफ डिडक्शन है आपका, तो यू कैन क्लेम अप टू 1 लाख रुपीज एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, राइट। इन ईपीएफ ऑल्सो, अब थोड़ा सा ये लॉन्ग डिस्कशन में चले जाएगा, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ईपीएफ में भी दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी पीएफ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड सेकंड वन इज रिकॉग्नाइज्ड ईपीएफ फॉर अदर एम्प्लॉय, राइट। उसके बाद आपके पास और ऑप्शन है 5 इयर्स लॉक इन एफडी में भी आप करा सकते हैं। बैंक में बहुत सारी ऐसी एफडीज है जिसमें आप 5 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको टैक्स की छूट मिलती है। अभी कुछ 2-4 साल पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, सुकन्या समृद्धि स्कीम, जो कि स्पेशली फीमेल किड्स के ऊपर निकाली थी। अगर आपकी कोई घर में लड़की है, बेटी है, तो उसके नाम पे आप सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोल सकते हैं। हेयर यू विल गेट द मैक्सिमम रिटर्न। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8.6 अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन आती है एनएससी। एनएससी इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू खुलवा सकते हैं। वहां पे भी आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं पेंशन स्कीम में, वो भी अंडर सेक्शन 80CCD में टैक्स फ्री होता है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट टूल है जहां पे आप अपना 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। आगे चलते हैं। ये गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था अंडर सेक्शन 80CCD 1B। ये नया सेक्शन बात करता है एनपीएस में। एज यू नो, वी आर लिविंग इन इंडिया, एंड इन इंडिया अब पेंशन कोई स्कीम नहीं है। आप लोगों को पता है कि हमारे हिंदुस्तान में रिटायरमेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। तो गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट सेविंग को
सेविंग को प्रमोट करने के लिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। 1,50,000 के अलावा आप अगर 50,000 रुपए एनपीएस में सेव करते हैं, so you'll get extra additional 50,000 rupees deduction. So this new section is introduced few years back where you will get additional tax benefit of 50,000 apart from 80C. Here you need to open a new NPS account and invest 50,000 for your retirement. NPS also got two accounts, tier 1 and tier 2, right? आगे अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सब लोगों ने अपनी बीमारी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा होगा, तो मेडिकल इंश्योरेंस में जो आप प्रीमियम पे करते हैं उसमें भी आपको कंपनी छूट देती है अंडर सेक्शन 80D। सो अगर आपने अपने ऊपर अपने और अपनी फैमिली के ऊपर अगर आप 35,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको इस पे कंपनी आपको डिडक्शन देती है। इफ यू पेड एनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर योर पेरेंट्स you'll get additional benefit of 25,000 as deduction. But if your parents are senior citizen, then you can claim up to rupees 50,000 as deduction. तो मोटे मोटे हम इसमें बात करें, अगर आप 35,000 रुपए अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने दो बच्चों के लिए अगर आप प्रीमियम पे करते हैं, you'll get deduction up to 35,000 rupees. अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए पे कर रहे हैं, you'll get additional 25,000 rupees as deduction under section 80DD. But if your parents are senior citizen, then you can claim up to 50,000 as a deduction. तो आई एम श्योर यहाँ तक कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 24(1)(b), जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इस सेक्शन का फायदा यह है कि जो आपने, मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि आपने अगर होम लोन ले रखा है तो होम लोन का जो आप ईएमआई पे करते हैं वो ईएमआई दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उसके दो कंटेंट होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल, सेकंड होता है आपका इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो अमाउंट आप पे करते हैं उस प्रिंसिपल को हम अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। उसी तरह एक सेक्शन 24(1)(b) इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, जिसमें आप जो इंटरेस्ट पार्ट पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट पे आपको इनकम टैक्स 2 लाख रुपए तक की छूट देता है। सो अनदर सेक्शन फॉर टैक्स सेविंग, whatever interest you paid entire year on home loan would get benefit up to rupees 2 lakh rupees. तो एक होम लोन की ईएमआई पे आपको अंडर सेक्शन 80C भी मिल जाएगा एंड 24(1)(b) भी मिल जाएगा, राइट। लेट्स मूव फर्दर। HRA कैलकुलेशन, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉई हैज अवेल्ड दिस फैसिलिटी। HRA कैलकुलेशन, HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो हर कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज को एक HRA की फैसिलिटी देती है कि जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं उस रेंट पे भी आपको टैक्स की छूट मिलती है। अब इसका भी एक बहुत सिंपल तरीका है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो 4 ऑप्शंस होती है, चारों ऑप्शन में से आइडियली 4 तो नहीं 3 कह सकते हैं, 3 ऑप्शंस होती है, 3 में से जो सबसे कम होगा वो आपका टैक्स में एग्जेम्प्टेड होगा। सबसे पहला आता है एक्चुअल HRA, जितना आपको HRA कंपनी दे रही है, राइट। सेकंड होता है जो आपने रेंट पे किया है माइनस 10% ऑफ योर सैलरी। तो यहाँ पे जो 10% हम सैलरी का लेते हैं दैट इज बेसिक। तो अगर सपोज आपने 25,000 रुपए रेंट पे किया है और आप बेसिक आपकी 1 लाख रुपए है, तो उसका 10% इज 10,000। तो 25,000 माइनस 10 इज 15,000 इज योर HRA अमाउंट। उसके बाद दो ऑप्शंस हैं, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी। So whichever is lower, whichever is least out of these 4, you'll get HRA benefit. तो जितना भी HRA आएगा आपका, सपोज 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख जितना भी आता है वो आप अपनी इनकम में से, ग्रॉस इनकम में से रिड्यूस कर लेंगे। उसके बाद जो बचेगा दैट वुड बी टैक्सेबल इनकम। लेट्स मूव फर्दर। उसके अलावा कुछ और सेक्शंस हैं, जैसे अंडर सेक्शन 80G है, 80GGA है एंड 80E है, राइट। तो 80G डिडक्शन जो है वो डोनेशंस के लिए है कि आप किसी भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन को अगर आप कोई डोनेशन देते हैं तो वो उसमें आपको टैक्स की छूट मिलती है। तो इसमें छूट कितनी मिलती है, डिडक्शन फॉर डोनेशन इज लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम का 10% से ऊपर इस सेक्शन पे क्लेम नहीं ले सकते। सपोज आपकी इनकम 20 लाख रुपए है तो आप 2 लाख रुपए तक का इसमें छूट ले सकते हैं। एक और सेक्शन होता है 80GGA, डोनेशन
फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। अगर आपने कुछ साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन दी है, सो हेयर यू कैन क्लेम योर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80E। 80E में आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं ऑन योर हायर एजुकेशन लोन, अगर आपने अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कोई भी हायर एजुकेशन का लोन लिया है, आप इसमें इसकी छूट ले सकते हैं। एडिशनल हाईलाइट इज देयर, कंपनी ने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है फॉर ऑल सैलरीड एम्प्लॉय। अर्लियर इट वाज 40,000 रुपीज, नाउ इट्स इंक्रीज टू 50,000 रुपीज सिंस फाइनेंशियल ईयर 1920। तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्ट्रेट अवे यू विल गेट 50,000 रुपीज डिस्काउंट डिडक्शन, राइट। उसके बाद टैक्स रिबेट है अंडर सेक्शन 87A, एनहांस बाय 12,500। मैंने जब ये पीपीटी स्टार्ट की थी, सबसे पहले मैंने ये बताया था कि सपोज इफ योर इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज, देयर इज नो नीड टू पे द टैक्स। तो ये 87A उसी के बारे में बोलता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, सो यू आपका जो टैक्स बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। तो इसमें कंपनी आपको 12,500 की छूट देती है, तो आपका टैक्स 5 लाख रुपीज तक नील हो जाता है, राइट। TDS deduction on fixed deposit threshold increase from existing 10,000 rupees to 40,000 rupees। पहले आपका एफडी पे जो भी इंटरेस्ट आता था वो 10,000 रुपए के बाद टैक्सेबल हो जाता था, अब कंपनी ने उसको 40,000 रुपीज तक टैक्स फ्री कर दिया है, राइट। Additional section 80 EEA is also there on home loan on purchase of affordable home is introduced from financial year 1920 for rupees 1.5 lakh rupees। अगर किसी इंडिविजुअल ने फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 के टाइम पे होम लोन लिया है, तो उसको एडिशनल 1.5 लाख रुपए का छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80 EEA। एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था 80 EEB ऑन ऑटो लोन ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की काफी मतलब स्कोप दिख रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो जो भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आप परचेज करते हैं, उस इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कंपनी आपको 1.5 लाख रुपए की एडिशनल छूट देती है, बाकी सब टैक्सेशन के अलावा, बाकी सारे टैक्स सेक्शंस के अलावा। जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, न्यू टैक्स रेजिमे में आपको अगर आप ये ऑप्ट करते हैं, देन यू वोंट गेट एनी डिडक्शन इसके अंदर, राइट। इफ यू ऑप्ट फॉर ए न्यू टैक्स रेजिमे, देन देयर वुड बी नो टैक्स डिडक्शन इज अलाउड। Here, new tax slab would be applicable. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया है, उसी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, इसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा सा इसको वापस आपको समराइज कर देता हूँ कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन वेयर यू विल गेट 50,000 रुपीज, अंडर सेक्शन 80C वेयर यू विल गेट डिस्काउंट डिडक्शन ऑफ 1,50,000। देन 80D जहां पे आपको 35,000 रुपए अपने और अपने परिवार के लिए मिल जाता है। 25,000 रुपए आपको 80DD भी मिल जाता है आपके पेरेंट्स के लिए। अगर पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 50,000 तक की छूट मिल जाती है। उसके अलावा सेक्शन 24(1)B पे हमने बात की थी कि जो आप होम लोन का EMI पे कर रहे हैं, उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो अंडर सेक्शन 24(1)B में आएगा, और जो प्रिंसिपल पार्ट है वो अंडर सेक्शन 80C में आएगा, राइट। उसके बाद हमने कुछ और सेक्शन देखे 80G, 80GGA, 80E, 80E फॉर हायर एजुकेशन, 80G फॉर डोनेशन, 80GGA फॉर डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट एरियाज में। तो ये कुछ सेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस करे थे। अब आगे चलते हैं, हम इसकी एक कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक इनकम टैक्स स्लैब शेयर करना चाहता हूँ 2021 का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप टू 5 लाख रुपीज नो टैक्स एट ऑल, जीरो टैक्स लगेगा आपका। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए है तो न्यू टैक्स रेजिम में आपका 10% का स्लैब है और ओल्ड में 20% का है। अगर आपकी इनकम 7.5 से 10 लाख है तो 15% और ओल्ड में 20% है। 10 से 12.5 लाख में आपका 20% और 30% है। 12.5 से 15 लाख पे आपका 25% न्यू में है एंड ओल्ड में 30% है। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो 30% दोनों में फ्लैट है, राइट। तो आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी टैक्स रेजिमे में जाके ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रेजिमे में जाएंगे तो न्यू स्लैब लगेगा, अगर आप ओल्ड में जाएंगे तो ओल्ड स्लैब लगेगा विथ ऑल डिडक्शंस।
तो कैलकुलेशन ऑफ, तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक एक्सेल तैयार किया है, उस एक्सेल से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे करनी है। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अब यहाँ देखिए, मैंने ना एक एक्सेल लिया है जिसमें फॉर्मूलाज मैंने डाल दिए हैं। हम एक एज्यूम करते हैं, लेट्स से कि मेरी इनकम 20 लाख रुपए है, ठीक है। और मैंने इसमें ऑलरेडी डिक्लेयर किया, जैसे कि अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलती है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो ये ग्रीन वाले कॉलम है ये आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जैसे एचआरए में मैंने 1.5 लाख रुपए लिया है, तो आप इसमें 2 लाख रुपए भी ले सकते हैं। मैं सेक्शन 80C में 1.5 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, तो मैंने 1.5 लाख रुपए यहाँ पे काउंट कर लिया है कि 1.5 लाख रुपए की मैंने रिबेट ले रखी है। देन एनपीएस में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें 50,000 की मैक्सिमम क्लेम है, तो मैं 50,000 रुपीज का क्लेम ले रहा हूँ। देन वी हैव मेडिकल इंश्योरेंस फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, तो 30,000 रुपए का मैंने वो ले लिया है। उसके अलावा मैं पेरेंट्स की मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 35,000 रुपए साल का देता हूँ। देन जो मैंने हाउस लोन लिया है उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट साल का लेट से 1,20,000 है, और मैं 50,000 रुपए की डोनेशन भी दे रहा हूँ किसी इंस्टीट्यूट को। तो ऑल टुगेदर ये मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल में भी आप देखेंगे ये 6,85,000 रुपए ही आएगा, जो यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको 6,85,000। तो यही 6,85,000 ये फॉर्मूला अपने आप टोटल करके बता रहा है कि टोटल एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन इज 6,85,000। तो अगर मेरी 20 लाख की इनकम है जिसमें से 6,85,000 रुपए मेरे डिडक्शन है, तो मेरी नेट इनकम इज 13 लाख रुपीज, राइट। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मैंने 0 कर दिया, तो ये मेरी और इनकम बढ़ जाएगी। अब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगा रखा है, ये आप देख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स में ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम। आप जिस भी स्लैब को चूज करते हैं ओल्ड या न्यू, उसके हिसाब से आपका टैक्स स्लैब लगेगा। यहाँ पे देखिए 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पे आपको 5% का टैक्स देना है, 5 लाख से 7.5 लाख पे 20% है, 7.5 से 10 पे 20, देन 30, 30, 30। सिमिलरली न्यू टैक्स रेजिम में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा टैक्स में गवर्नमेंट ने लीनियंसी दिखा रखी है। यहाँ पे 5%, देन 10%, देन 15, देन 20 एंड देन 25, देन 30। तो 5% करके ये बढ़ रहा है। बट यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे 5 के बाद सीधा 20% है, जबकि वहां पे 10% है। वहां पे 20% टैक्स का स्लैब है, यहाँ पे 10%, 15% का टैक्स का स्लैब है। वहां पे 30% टैक्स का स्लैब है, लेकिन यहाँ पे 20% स्लैब है। तो न्यू टैक्स रेजिम के टैक्स स्लैब थोड़े से कंपैरेटिवली लीनियंट है ओल्ड के, बट न्यू में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब इसमें ऑटोमेटिकली मैंने फॉर्मूला लगा रखा है 13,65,000 के हिसाब से। ये बताता है कि अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में ऑप्ट करते हैं तो आपका टैक्स होगा 2,22,000 रुपए का टोटल टैक्स, और न्यू टैक्स रेजिम में आपका टैक्स होगा 3,37,500। तो क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिमे को चूज किया है तो आपको 2,22,000 पे करना है, जबकि वहां पे 3,37,000। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं 1,15,000 रुपए का न्यू टैक्स रेजिमे में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ओल्ड टैक्स रेजिमे को चूज करना चाहिए एज कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिमे। हाँ, अगर आपकी डिडक्शन नहीं है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है या कोई पेमेंट आप नहीं करते हैं, तो आप डायरेक्टली न्यू टैक्स रेजिमे भी जा सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मेरी इनकम है 30 लाख रुपए की, ठीक है जी। तो मेरी जो नेट इनकम आ जाएगी टैक्सेबल इनकम दैट वुड बी 23,65,000। उसके हिसाब से मेरा टैक्स बनता है 5,22,000 रुपए, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में मेरा टैक्स बनता है 6,37,500 रुपए, ठीक है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं, अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी कहीं पेमेंट कर रखी है, तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ही ऑप्ट करिए, न्यू टैक्स पे मत जाइए। हाँ, अगर आपकी इनकम कम है, लेट्स से आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रखा है, देन मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ न्यू पे जाइए। लेकिन अगर आपका सीटीसी ज्यादा है तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिमे पे जाना चाहिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल कि ये एक्सेल मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो इस एक्सेल से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आप कितना टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा।
कि आपको न्यू टैक्स रेजिमे में जाना है या ओल्ड टैक्स रेजिमे में जाना है, कैसे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, कितने वेरियस सेक्शन है जिसमें आप टैक्स की सेविंग कर सकते हैं. So now you can see and calculate which one is better for you to opt. So I hope it is quite clear to everyone. अगर कोई आपको still doubt है तो आप please comment box में अपने doubt लिख सकते हैं. Definitely मैं आपको उसका revert करूँगा. Thank you very much. I hope you like my video. Thank you very much.